व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की कुछ मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने जैसा है, हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे सीएम योगी, संतों ने मुख्यमंत्री को दी जन्मदिन की बधाई। कुंभ मेले में भी 50-60 लोग मारे गए थे, बेंगलुरु हादसे पर अब बोल गए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने जैसा है, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई पर निशाना साधकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। बुधवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी असम की राजनीति में गौरव गोगोई के फिर से उभरने के बाद एक रणनीतिक राजनीतिक बदलाव का संकेत देती है। गोगोई ने हाल ही में राज्य कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली और 31 मई से ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बड़े पैमाने पर पार्टी को संगठित करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री যথেষ্ট পাৰ্থক্য থকা বুলি একদম পাৰ্থক্য আছে। মোৰ ঘৰতো এটাও বিদেশী নাই, বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে। মোৰ ঘৰতো এটাও বিদেশী নাই। যিমানে যি নকওঁ কি আমাৰ দৰে চামৰাই মানুহবিলাক আমি বহি আছো, গতিকে পাৰ্থক্যটোতো আছেই ডেফিনেটলি। এই ক্ষেত্ৰত কৈছিল যে ৰাজনীতিৰ আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে। ৰাজনীতিত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। মই সংঘৰ্ষ কৰি ইয়ালৈকে আহিছো। মোৰ দেউতাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাছিলে, গতিকে কিমান আপোনালোকে ভাবকচোন, কিমান গালি গালাজ কৰি মোক কিমান চেষ্টা কৰিছে, তাৰ পিছত মই কত যুঁজি ইয়ালৈকে আহিছো। গতিকে মোৰ যাত্ৰাটো হল সংঘৰ্ষ। সোণৰ চামুচ মুখত লৈতো আমি জন্মাই নাই, সেইকাৰণে আমাৰ পাৰ্থক্য বহুত আছে। কিন্তু মেইন পাৰ্থক্যটো হল ঘৰত ভাতৰ থালি কেনেকে খায়। এজন ভাৰতীয়ৰ ভাগত 3টা ব্ৰিটিছৰ ভাগত কেনেকে ঘৰখন চলে, মোৰ এইটোহে অলপ জানিব ইচ্ছা হৈ আছে। একো যুঁজে নহয়, বিজেপিৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বক মেচ কৰিব পৰা একো ৰাস্তাই নাই। আপোনালোকে দুটা বস্তু ভাবি চোৱা নাই যে পাকিস্তান ভাৰতৰ যুদ্ধতে ৰাহুল গান্ধীয়ে কাক সমৰ্থন কৰিলে আৰু গোটেই ৰাহুল গান্ধীৰ পাৰ্টিটোৱে কাক সহায় কৰিলে। গতিকে অসমৰ মানুহ ভাৰতীয়, অসমৰ মানুহে অকল, আকৌ মই কৈছো, অসমৰ মানুহে যেনেকে নিউজ লাইভ, প্ৰাগ টিভি প্ৰতিদিন চায়, তেনেকে অসমৰ মানুহে টাইমছ নাও ৰিপাব্লিকো চায়। অসমৰ মানুহে যেনেকে অসমৰ ইউটিউব চায়, তেনেকে ভাৰতৰ ইউটিউবো চায়। অসমৰ মানুহ ভাৰতীয়। গতিকে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত ৰাহুল গান্ধীক ভোট দিয়া মানে যে পাকিস্তানক ভোট দিয়া, বাকীতো এইবিলাক সৰু সুৰা কথা থাকিয়ে গল। আচলটো মুৰব্বীজনেই প্ৰ পাকিস্তান নহয়। কালি মধ্যপ্ৰদেশত কোনবোৰ কথা কৈছে আপোনালোকে নিজে শুনিছে। সেইকাৰণে নেশ্যনেলিজিম, আইডেণ্টিটি আৰু ডেভেলপমেণ্ট, আমাক বিজেপিৰ অসমত কোনো বিকল্পই নাই। অসমীয়া ভাৰতীয় মানুহৰ কাৰণে বিজেপি যে নেচেচাৰী ইন আছাম। আজি কোনে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে যে অসমীয়া মানুহক আৰ্মছ লাইচেন্স দিম? এইটো কংগ্ৰেছে কেতিয়াবা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব? বৰদোৱাৰ পৰা এভিকশ্যন কৰি দিম, কাজিৰঙাত গড় এটাও হত্যা হ'ব নিদিওঁ, বৰপেটা সত্ৰৰ ফালে ৰঙা চকু দেখুৱাব নিদিওঁ, এই সিদ্ধান্ত কোনে ল'ব পাৰে? বোলে এটা বাচ্চাও চাইল্ড মেৰেজ হ'ব নিদিওঁ, এই সিদ্ধান্ত কোনে ল'ব পাৰে? গতিকে অসমীয়াৰ কাৰণে বিজেপিটো এটা কম্পালচন হয়, কাৰণ অসমীয়া মানুহে যিটো বিচাৰে তাক বিজেপিয়ে দিব পাৰে, আৰু বিজেপিয়ে যি ৰাজনীতি কৰে সি অসমীয়া মানুহৰ আদৰ্শত ৰাজনীতি কৰে। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे सीएम योगी, संतों ने मुख्यमंत्री को दी जन्मदिन की बधाई। गंगा दशहरा पर राम मंदिर के प्रथम तल पर माता सीता संग राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा आज अभिजीत मुहूर्त पर होगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली आरती उतारेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच चुके राम कथा पार्क स्थित हेलीकॉप्टर पर लैंड करने के बाद उनका काफिला सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचा, जहां दर्शन पूजन करने के बाद मठ के संतों से मुलाकात की। महंत संत रामदास, महंत राजू दास, महंत संजय दास पुजारी, हेमंत दास सहित अन्य संतों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी।
जगदाधारे तमे साष्टांगोऽयं प्रणामस्यात्मदाने हो सद्भावना हो कल्याण हो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्गमा भवेत् काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु सदा स्वयं परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु रामराज्याभिषेकणा एतान्ये कृतबोधनाः ते सर्वे
सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं बोलेंगे जन्मदिन आपसे बोलेंगे मंगल हो जन्मदिन 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 जय जय श्री राम भारत माता की वंदे वंदे जन्मदिन की शुभकामनाएं भरत जी नमस्ते कॉपी पेस्ट नहीं किया। तीसरा अवतार का मंदिर शायद हिंदुस्तान में दूसरा ऐसा
ये और अब अगली खबर। कुंभ मेले में भी 50-60 लोग मारे गए थे। बेंगलुरु हादसे पर बोल गए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं देश भर में पहले भी हो चुकी है, जैसे कुंभ मेले में 50-60 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन फिर भी वह इस घटना का बचाव नहीं करना चाहते। उन्होंने स्पष्ट किया कि बेंगलुरु में जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था और इसका कोई बचाव नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा, स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, लेकिन जश्न के लिए करीब 3 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने बताया कि इस भीड़ के कारण भगदड़ मची, जिसमें 11 लोगों की मौत और 45 लोग घायल हुए। उन्होंने कहा, ये एक ऐसी त्रासदी थी जो होनी ही नहीं चाहिए थी। सिद्धरमैया ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಶಾಂಪಿಡಿ ಯಾರು ಯಾರು ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನ? ನಾನ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ? ನಾನ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದವರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬೇರೆ. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ನ? ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. और अब अगली खबर। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी का तोहफा। दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तोहफा दिया है। राजधानी दिल्ली में अब 200 नई इलेक्ट्रिक बसें और सड़कों पर दौड़ने लगी है। इन बसों को पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाई। ये बसें न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि शहरवासियों को सुगम व साफ सुथरा सार्वजनिक परिवहन भी प्रदान करेगी। ये पहल केंद्र व दिल्ली सरकार की संयुक्त सोच का परिणाम है। इसे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने जैसा है। और अब अगली खबर। जनगणना 2027 पर भड़के स्टालिन। बोले, तमिलनाडु की आवाज दबाने की साजिश। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2027 में जाति सहित जनसंख्या जनगणना की घोषणा के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु के खिलाफ एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश बताया है। सीएम स्टालिन ने एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर था उस पर पोस्ट करते हुए कहा, भारतीय संविधान के अनुसार 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। भाजपा ने अब जनगणना 2027 तक टाल दी है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उनका इरादा तमिलनाडु का संसदीय प्रतिनिधित्व कम करने का है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही इस साजिश की चेतावनी दी थी और अब ये सच्चाई सामने आ रही है कि पलानी स्वामी चुप नहीं है, बल्कि इस विश्वासघात में शामिल है। उन्होंने दिल्ली के वर्चस्व के आगे घुटने टेक दिए। स्टालिन ने केंद्र से मांग की कि वो जनगणना और परिसीमन को लेकर स्थिति स्पष्ट करे और तमिलनाडु के लोगों को विश्वास मिले। तमिलनाडु के लोग निष्पक्ष परिसीमन की अपनी मांग में एकजुट है। हमें केंद्र से स्पष्ट जवाब चाहिए। और अब अगली खबर। बेंगलुरु भागदड़ में जवान बेटे को खो चुके पिता का सब्र जवाब दे गया। नेता विपक्ष के सामने फूटा गुस्सा। बुधवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 6 पर उस वक्त भगदड़ मची थी जब आईपीएल में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने बड़ी संख्या में आरसीबी के फैंस स्टेडियम के बाहर जमा हुए। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हादसे को करीब 15 घंटे बीत चुके, लेकिन अभी तक किसी ने भी हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली। बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने भागदड़ की न्यायिक जांच के आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन वो भी भगदड़ की जिम्मेदारी लेने से भाग रही है। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों का गुस्सा फूट पड़ रहा है। ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಈ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ದಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ದಂಗ್ ಮಾಡಿ ವೈದೇಹಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ और अब देखते हैं अगली खबर। भाजपा सांसद दग्गुबाती पुंडरेश्वरी का बयान, बोली आतंकवाद कल आपके दरवाजे पर भी हो सकता है। भाजपा सांसद दग्गुबाती पुंडरेश्वरी ने बयान देते हुए कहा कि भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है, हमारी सेना सरेंडर नहीं करती। हमारे पास अग्रिम पंक्ति में न केवल सशस्त्र अधिकारी थे बल्कि महिलाएं भी युद्ध के मैदान में अग्रिम पंक्ति में थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के डेलीगेशन को दुनिया भर के देशों में भेजा गया। इस बीच ब्रसेल्स में भाजपा सांसद दग्गुबाती पुंडरेश्वरी ने कहा, भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है। भारतीय सेना कभी आत्मसमर्पण नहीं करती, लेकिन वे गरजते हैं। हमारे पास न केवल पुरुष सशस्त्र अधिकारी थे जो अग्रिम पंक्ति में थे, बल्कि हमारे पास वो महिलाएं भी थी जो युद्ध के मैदान में अग्रिम पंक्ति में थी। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया को यह बताना है कि आज आतंकवाद पारंपरिक आतंकवाद नहीं, बल्कि हम कट्टरपंथ, स्लीपर सेल आदि के रूप में आतंकवाद के अपरंपरागत रूप का सामना कर रहे हैं। इसलिए अगर ये आज भारत के दरवाजे पर है तो ये कल आपके दरवाजे पर भी हो सकता है। India is capable enough of taking care of herself. It is rather sad when you hear people say that Indian army surrendered. And I would like to emphasize here that Indian army never surrenders, but they thunder. India is known as a country of Shanti. But after the incident of Pahalgam, she metamorphosized into a country of Shakti, where we not only had the male armed officers taking the front line, but we had women too who took the front line on the battlefield. We had Vyomika Singh, we had Shefali Qureshi, and we had the first woman pilot who piloted the Rafale, Shivani Singh. So we are strong enough, we are capable enough of taking care of ourselves. But what is important here is to tell the entire world that today terrorism is not the conventional terrorism, but we are facing unconventional forms of terrorism in the form of radicalization, sleeper cells, and so on. So if it is at the doorstep of India today, it could be at your doorstep tomorrow. It is high time that we ask the international community to stand up in unison and call out this kind of terror activities emanating from there. And I keep saying this in every speech I make, that Pakistan has become a hub and it has become the economic model to use terrorism as a way to try and hold the world to ransom. And the world, like India, has called them out. The world should also show the gumption and stand up and call them out. How do they call them out? They call them out through grey listing them through FATF. Let's not forget European Union is an important part of all the power structure that governs the, post-World War II era. Call them out in the United Nations Security Council. Call them out for all the terror activities that are coming from there. Until you don't call them out, this is a failed fight against terrorism that European Union is running. We will continue to fight our fight. Let me tell you, we've had decades of experience of showing them their place. अरे आपको ग्राउंड पे हराया, हमारी आर्म फोर्सेस ने हराया, हमने आपको क्रिकेट में हराया है, हमने आपको ट्रेड में हराया, हम 11 गुना आपसे ज्यादा है हमारा जीडीपी, हमने हर तरफ से हराया, कितनी बार और ह्यूमिलिएट होना है. So we have the gumption to stand up for the civilians of our country. Our armed forces are capable to stand up for the civilians of this country because we respect every single life that is lost to terror. Unfortunately for that country, and the civilians of that country, I'm sure they realize this, but they know that they have no power. They are used as second line of defense. And it is again on the floor of the House that the defense minister has said that if it comes to a war, the children studying in madrasas would be a second line of defense. That's how you treat your civilians. You do not shut the civilian airspace when you're attacking India because you're hiding behind these civilians to safeguard your interest and to put a false narrative. So I'm here, and I speak as an Indian citizen, I speak as a Mumbaikar who has suffered the consequences of 26/11 terror attacks. And over 160 people died in those terror attacks.
They were not just Indians. They were US citizens. They were European citizens. We fought for them. And we are capable of fighting for ourselves. We are just here, and through y'all, we are here to make them realize that it has come to our doorstep multiple times over, and we have us safeguarding ourselves. It will come to your doorstep too. Be prepared, be alert, and be ready to call this hypocrisy and this lies out and call out the terrorism emanating out of Pakistan. I'll end it with that. और अब अगली खबर, महा रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ लापता, सेना ने दर्ज कराई रिपोर्ट, इंटेलिजेंस और पुलिस हुई एक्टिव। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सेना के महा रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट कर्नल लापता हो गया है। सेना ने पुलिस के पास इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई। आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस भी इसे लेकर एक्टिव हो गई है। सेना ने पुलिस के पास इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस भी इसे लेकर एक्टिव हो गई। सागर स्थित महार रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप कुमार निगम अचानक लापता हो गए। इस मामले में सेना ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप कुमार निगम सोमवार को सुबह से नियमित पीटी में शामिल हुए थे। हालांकि उसके बाद से ही उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा कि वे कहां चले गए। लेफ्टिनेंट कर्नल गायब है बीते दिनों से, क्या है मसला, क्या अभी तक तहकीकात हुई है? देखिए, कैंट थाना क्षेत्र में एक सूबेदार मेजर हैं, उनके द्वारा ये थाने को सूचना दी गई थी कि उनके कैंपस से लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, वो सुबह वॉकिंग के लिए निकले थे। उसके बाद से फिर वो आए नहीं है वापस। तो इस सूचना के आधार पर कैंट थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उनकी तलाश की जा रही है और उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं उन लोगों से पूछताछ करके साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और तकनीकी साक्ष्यों को भी हम लोग लाइन अप कर रहे हैं। तो उनकी दस्तयाबी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सर, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है और कब से यहाँ पता था सर? ये जो अभी जानकारी है ये मूलतः ग्वालियर के रहने वाले हैं और उनका नाम प्रदीप निगम है। ठीक है सर। और अब अगली खबर, पूर्वोत्तर में बिगड़े हालात, सिक्किम का लाचेन गांव पूरी तरह से कटा, 9 लाख लोग प्रभावित और अब तक 50 की मौत हो चुकी है। असम समेत पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों और सिक्किम में पिछले 6 दिनों से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति और गंभीर हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कें बंद हैं। ब्रह्मपुत्र समेत 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और सैकड़ों घर गिर गए हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। बारिश बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें सबसे अधिक असम के 19 लोग शामिल हैं। 1,500 से अधिक जलमग्न हुए, लगभग 9 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिणी असम, खाकर, सिलचर में कुछ हिस्सों में रेल सेवाएं पटरियों पर बढ़ते जल स्तर और वॉशिंग पिट में जल भराव के कारण प्रभावित हुई है। कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया, कुछ के फेरे बदल गए और कुछ के गंतव्य से पहले ही सीमित कर दिया गया है। और अब अगली खबर, अहमदाबाद से करीब 10 किलोमीटर पहले 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग, नेशनल एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम। गुजरात में अहमदाबाद से करीब 10 किलोमीटर पहले नेशनल एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रकों में टक्कर के बाद आग लग गई। आग बुझाने का काम जारी है। स्टेशन फायर ऑफिसर माता प्रसाद पांडे ने बताया कि आज सुबह करीब 4:15 बजे यहाँ एक ट्रक खड़ा था, तभी पीछे से दूसरे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। आग बुझाने का काम जारी है। एक ट्रक ड्राइवर घायल है, उसका इलाज चल रहा है। और अब अगली खबर, त्रिसेना की पहली महिला नौकायन यात्रा पूरी कर ली है। 11 वीरांगनाओं ने 55 दिन में लहरों पर रचा इतिहास। भारत के समुद्री और सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। देश की सेना, नौसेना और वायुसेना के महिला अधिकारियों की पहली त्रिसेना नौकायन यात्रा बुधवार को सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। मुंबई से सेशेल्स और फिर वापसी की यह ऐतिहासिक यात्रा करीब 55 दिनों में 3600 समुद्री मील की दूरी तय कर पूरी की गई। बता दें कि यात्रा 7 अप्रैल 2025 को IASV त्रिवेणी नामक भारतीय नौकायन पोत से शुरू हुई थी और 4 जून को मुंबई स्थित इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में इसका समापन हुआ। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल AK रमेश ने टीम का स्वागत किया। इस यात्रा पर गई टीम में 11 महिला अधिकारी शामिल थे, जिनमें थल सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा, मेजर करमजीत, मेजर तानिया, कैप्टन ओमिता, कैप्टन डॉली और कैप्टन प्राजक्ता। नौसेना से लेफ्टिनेंट कमांडर प्रियंका और वायुसेना से स्क्वाड्रन लीडर विभा, श्रद्धा, रूबी और वैशाली शामिल थी। और अब अगली खबर, हस्तक्षेप करने वाले चाचा से मदद करने वाले भाई की भूमिका में भारत, CGI गवई ने मध्यस्थता पर दिया जोर।
देश के सीजीआई बीआर गवई ने मध्यस्थता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्यस्थता अब महानगरों तक सीमित नहीं रह गई, ये प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ अब बहुत आगे तक पहुंच गई है। इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका में नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की जरूरत भी बताई। वे लंदन में LCIA अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आने वाले वर्षों में वैश्विक मध्यस्थता परिदृश्य में भारत की क्या भूमिका होगी, तो इस पर सीजीआई ने कहा कि भारत की सामान्य कानूनी जड़ों और मध्यस्थता को लेकर की जा रही पहल और निर्णयों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत वैश्विक मध्यस्थता को लेकर हस्तक्षेप करने वाले चाचा से मदद करने वाले बड़े भाई की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। अमेरिका में थरूर को टक्कर देने चले थे बिलावल, कटा रहे पाकिस्तान की बच्ची कुची नाक। भारत को कॉपी करते हुए पाकिस्तान ने भी अमेरिका में अपने एक प्रतिनिधिमंडल को भेजा है। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी इसका हिस्सा है। पाक ने उन्हें अपना बचाव करने के लिए भेजा, लेकिन उल्टा वो अपने देश की बच्ची कुची नाक कटवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका सहित कई देशों में पाकिस्तान को बेनकाब किया। थरूर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के कारनामे को दुनिया के सामने रखा। कांग्रेस का ये दिग्गज उस एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा है जिसे भारत सरकार ने विदेश भेजा था। थरूर अमेरिका वाली टीम को लीड कर रहे हैं। सरकार ने उन्होंने जो जिम्मेदारी उसे उन्होंने शानदार तरीके से निभाई है। अपने जवाबों से उन्होंने सामने वालों की बोलती बंद कर दी। उनको टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अमेरिका भेजा है। वैसे भुट्टो तो पाकिस्तान का मान बढ़ाने के लिए भेजे गए थे, लेकिन उल्टा उन्होंने अपने मुल्क का मजाक बनवा दिया और बच्ची कुची नाक भी कटवा दी। Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. और अब अगली खबर। हाँ, गलती हुई, इसे टाला जा सकता था। खड़गे ने बताया बेंगलुरु भगदड़ में कहा हुई चूक। दरअसल बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि ये प्रशासन की गलती है और मैं ये गलती स्वीकार करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी अपनी आदत से मजबूर है और वो हर जगह बिना स्थिति देखे राजनीतिकरण करती रहती है। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने गए लोगों के घर मातम छा गया। विजेता खिलाड़ियों के स्वागत के लिए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में लाखों की संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। अचानक भीड़ के बेकाबू होने से स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और अब अगली खबर। लालू यादव से हमें सीखना चाहिए। बिहार चुनाव की हलचल के बीच प्रशांत किशोर ने क्यों की तारीफ। दरअसल बिहार चुनाव के बीच प्रशांत किशोर ने लालू यादव को एक अच्छा पिता बताते हुए उन पर कटाक्ष किया। पीके ने कहा, लालू यादव को देखिए, वो एक अच्छे पिता है। बेटी 9वीं पास नहीं हुआ, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। साथ ही पीके ने कहा, हम ये कहकर लालू जी की शिकायत नहीं बल्कि तारीफ कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के सारण में लोगों को संबोधित करते हुए आरजेडी के नेता लालू यादव की तारीफ की। उन्होंने लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बच्चों की चिंता क्या होती है, यह आपको लालू जी से सीखना चाहिए। प्रशांत किशोर ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया। पीके ने कहा, लालू जी के लड़के के 9वीं क्लास पास नहीं की, लेकिन लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है। वो चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। हमने ये बात कही तो कुछ लोगों को लगेगा कि हम लालू जी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम तो लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, उन्हें अपने बेटे की चिंता है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।